السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و معزز سامعین اکرام و ناظرین اکرام، بحمدہ تعالی اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو اس پاک مجمع اور مجلس کے اندر جمع و اکٹھا فرمایا۔ یقیناً اللہ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے یہ خوشی کا لمحہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس فتنے کے دور میں، دور فتن میں، یہ پسند فرماتا ہے کہ ہم اس کے کلام الہی کو بغور سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے درس میں گزشتہ ہفتہ سورہ آل عمران آیت نمبر 79 تک کی بات مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں سورہ آل عمران آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 90 تک انشاءاللہ تعالی ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی آیت نمبر 90 تک ہاں 90 تک انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر رکھنے کی کوشش کی جائے۔ درس قرآن چونکہ کافی ہفتے اور مہینے سے ہم اور آپ اٹینڈ کر رہے ہیں اور حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کام کو اور اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر ہم وقت کے مقررہ پر پہنچیں۔ اگر آپ دلی بات کا اظہار کیا جائے آپ کے سامنے تو یقین جانیں کہ جہاں پر اکثریت یا کثیر تعداد کو دیکھنے کے بعد دل خوش ہوتا ہے، وہیں پر قلیل تعداد دیکھنے کے بعد بھی دل خوشی ہوتا ہے، غمزدہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو درس کا سلسلہ ہم اور آپ مسلسل اس میں ہم شامل ہو رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کو جوڑ سکیں یا ان کو دعوت دے سکیں۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ دعوتی سرگرمی جو ہے، ہر آدمی جب کوئی کام کی شروعات کرتا ہے یا کوئی بزنس کی شروعات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک بات رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو آگے بڑھائے اور دین دگنی یا چوگنی ترقی دے۔ یہ ہمیشہ ہر ایک کے خیالات ہیں، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ دعوت و تبلیغ کا میدان ایسا ہے کہ آپ جب اس پر کام کریں گے تو آپ کی تعداد اکثریت کی بجائے اقلیت میں آئے، اور اقلیت میں آنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صحیح ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اقلیت میں آنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی تعداد جو کم ہو جائے گی کہ آپ درست سمت میں چل رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں شیطان ان چیزوں میں لوگوں کو ورگلاتا ہے جو چیزیں بالکل خلاف شرع ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں تعداد کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جو چیزیں شریعت کے عین مطابق ہیں، آپ قرآن کا ترجمہ تفسیر سنیں، حدیث کے درس کروائیں، اسی طریقے سے تقاریر و خطبات ہوں، تو شیطان ایسی چیزوں سے مسلمانوں کو دور کرتا ہے۔ اور دور کرنے کا کئی ایک طریقہ ہے، بہت سارے طرائق ہیں جو آپ اشارت میں سمجھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے دور کر دینا مقصد ہوگا۔ طریقہ فیکٹ نہیں ہے، فیکٹ ہے دور کرنا۔ تو ایسے میں حقیقت میں دل بہت خوش ہے اور مطمئن ہے کہ ہاں ہم لوگ صحیح سمت میں چل رہے ہیں۔ اول یہ، دوسری بات کہ جو لوگ ابھی تک ٹکے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، چاہے آن لائن ہو یا آف لائن ہو، سب کے سب قابل دید ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سانس زندگی جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہے، اسی طریقے سے دنیا میں رہنے کے لیے اللہ کی بندگی ضروری ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت ضروری ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 80 کے اندر بیان کر رہے ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیت سے ہے جس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے
کہ اللہ نے جسے کتاب دے رکھی ہے یا حکمت دے رکھی ہے، نبوت دے رکھی ہے، ثم یقول للناس، پھر لوگوں سے کہ قولوا عبادا لی، کہ میری عبادت کرو۔ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کوئی نبی کے لیے بھی جائز نہیں، عام انسان نے چھوڑ دیں، یہاں انسان کی بات ہے، وما کان لبشرین، بشر مطلب انسان ہوتا ہے، لیکن آج من نبوت کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے کہا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کوئی نبی اپنے پیروکاروں سے کہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اسی کا عطف اگلی آیت ہے، آیت نمبر 80 پہ، ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ ہی کوئی پیغمبر تم کو اس بات کا حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کہ کبھی بھی کوئی اللہ کا نبی یا رسول اس بات کی تعلیم نہیں دے سکتا کہ نبیوں کو، یا جیسے کوئی نبی ہے تو کہے کہ تم مجھے خدا بنا لو، رب بنا لو، نبی کی تعلیم میں سے نہیں، تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا نہ ہی اس بات کا حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا تم کو تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کافر ہونے کا حکم دے گا؟ یا کوئی بھی نبی جب بھی تم مسلمان ہو گئے ہو تمہیں کیا اس بات کا حکم دے گا کہ تم کافر ہو جاؤ؟ کبھی نہیں دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 81 کے اندر بیان کر رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے کہا کہ اور جب اللہ رب العالمین نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا کہ جب میں تم کو وہ چیزیں دوں، کیا چیزیں؟ میں کتاب عطا کروں، وحکمت اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آئے مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے، اس کی تصدیق کرے، تو تم کیا کرنا؟ لتؤمنن بہ، تم اس پر ایمان لانا، ولتنصرنہ، اور ضرور بضرور اس کی تم مدد کرنا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ عہد و پیمان تمام نبیوں سے لیا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رسالت ختم ہو گئی، رسالت اور نبوت اللہ کے نبی کے اوپر ختم ہو گئی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبیوں کا سلسلہ چل رہا تھا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں شعیب علیہ السلام تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں لوط علیہ السلام تھے۔ اس طریقے سے ایک ایک نبیوں کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں کئی نبی تھے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا، کیا عہد و پیمان لیا؟ کہ جو کچھ میں تم کو دوں، کتاب دوں یا حکمت دوں، پھر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص، ایسا نبی آ جائے جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی کتاب اور حکمت، اس کی تصدیق کر دے۔ یعنی جیسے مان لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کو کتاب ملی تورات، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے وہ تصدیق کر دے کہ ہاں یہ کتاب آپ کو جو دی گئی صحیح ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ آسمانی کتاب ہے۔ تو جتنے نبی ہیں سب اس کی پیروی ہیں، مطلب کہ اب یہاں سے ان کا دن کا اختتام ہوا، اب یہ دن کا کام آگے بڑھائیں گے، تو کچھ نہ کچھ تبدیلیاں احکام میں ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کے دور میں کیا تھا کہ ایک ساتھ ایک بیٹا ایک بیٹی ہوا پیدا ان کے، پھر دوسری مرتبہ اولاد ہوئی تو ایک بیٹا بیٹی ہوئی، تو اللہ نے یہ قانون لگا دیا کہ جو پہلا بیٹا ہے دوسری بیٹی سے نکاح کرے گا، جو پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی فرسٹ ٹائم میں، تو دوسرا بیٹا جو پیدا اس سے نکاح کرے، اس کو جائز، اللہ دونوں بھائی بہن ہوئے، بات سمجھ آئے نا؟ جیسے آدم علیہ السلام کے پہلے دو بیٹے ہوئے، جڑوا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، پھر بعد میں ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوئی، تو یہ کیسے نکاح ہوگا؟ تو جڑوا بھائی بہن شادی نہیں ہوگی، اس میں کا بھائی اس سے اس بہن سے کرے گا اور یہ بھائی اس بہن سے کرے گا۔ اصل میں حابیل قابیل کا معاملہ یہی تھا کہ جب حابیل جس بہن کی شادی کیا وہ خوبصورت تھی، قابل انکار کر دے، بولا کہ یہ بصورت ہم کیسے کریں، تو فائدہ ہو گیا، میرا نقصان ہو گیا، اسی پہ تو قتل ہوا۔ یہ پورا واقعہ کبھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو بہت سے احکام تھے جو نبیوں دیگر نبیوں کے زمانے میں جائز تھے، جو اب نہیں بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام نبیوں سے ہم نے عہد لیا کہ جب تمہارے درمیان کوئی دوسرا نبی آ جائے گا تمہارے بعد، اگر تم حیا سے رہیں تو اس کی اتباع کریں، اور جو متبعین تمہارے ہوں گے وہ بھی اس نبی کی اتباع کریں۔ یہ عہد و پیمان ہم نے لیا۔ آگے اللہ نے کہا کہ تم اس پر ایمان لانا، ولا تنصرنہ، اور تم اس کی ضرور بدل مدد کرنا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلک اصری، تم لوگوں نے کہا کہ کیا ہم اقراری ہو جائیں اور یہ کہ وہ ہمارے اوپر جو ہے ذمہ داری لے، ہمارے اوپر ذمہ دار رہیں۔ تو اللہ نے کہا اقررنا، سارے لوگوں نے اقرار کیا، سارے پیغمبروں نے اقرار کیا کہ ٹھیک ہے اللہ، جب بھی ایسا ہوگا دنیا میں لانے کے بعد اور ہماری نبوت کے بعد دوسرا نبی آئے گا تو ہم اس کی اتباع و پیروی کریں گے۔ لیکن یہ چیز صرف اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں آخری پیغمبر۔ اب آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے بغل میں حضرت عمر فاروق تورات پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ، آنکھ چہرہ آپ کا سرخ ہو،
کہ تم ایسی کتاب پڑھو جس میں خلط ملت کر دیا گیا ہے, اتار چڑھاؤ کر دیا گیا, بڑھاؤ گھٹاؤ کر دیا گیا ہے, تم ایسی کتاب پڑھ رہے ہو. یاد رکھو کہ تورات جس پر نازل ہوئی موسیٰ, اگر موسیٰ بھی آ جائیں اور تم موسیٰ کی اتباع کرو تو موسیٰ بھی میری پیروی کریں گے. موسیٰ بھی کیا کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. یہ صرف اللہ کے رسول سے الگ ہے, باقی تمام پیغمبروں کو ہی اسی بات کا حکم دیا گیا. جب انہوں نے اقرار کر لیا, قالوا اقررنا, قال تو اللہ نے کہا فاشهدوا, تم لوگ گواہ رہو, وانا معكم من الشاهدين, اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا. میں بھی, اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں گواہ رہوں گا, کہ تم بھی گواہ رہنا جہاں ہم نے اقرار کیا, اور میں بھی گواہ رہوں گا کہ تم نے اقرار کیا. اس کے بعد آیت نمبر 82 میں اللہ نے کہا 82 میں فمن تولی بعد ذلك, اب اقرار کرنے کے بعد بھی اگر کوئی منہ پھر لے, پیٹ پھر لے, حالانکہ انبیاء ایسا نہیں کیا. انبیاء جو اقرار کیا دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے پریکٹیکل بھی کیا, لیکن اللہ کہہ رہا ہے بطور زجر و توبیخ, مطلب ڈرانے کے لیے, فمن تولی بعد ذلك, اس کے بعد اگر کوئی پیٹ پھیر لے, یعنی جو ایگریمنٹ کیا اسے منہ موڑ دے, پیچھے ہٹ جائے, فاولئک هم الفاسقون, یہی لوگ فاسق, یہی لوگ فاسق. آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے آیت نمبر 83 میں, افغیر دین اللہ یبغون, کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں. یہ استفہامیہ ہے, سوالیہ نشان میں اللہ رب العالمین پوچھ رہا ہے سوالیہ طور پر, افغیر دین اللہ یبغون, کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا, حالانکہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی وہ اللہ رب العالمین کی تابع ہے. وَلَهُ اسلم, سب کے سب اسی کے لیے تابع ہیں. من فی السماوات, جو کچھ آسمانوں میں, والارض, اور زمینوں میں ہے, طوعا و کرہن, طوعا و کرہن میں ہوتا ہے خوش یا ناخوش ہو کر. جو کچھ زمین و آسمان میں, چاہے وہ خوش ہے چاہے ناخوش ہے, وہ سب کے سب اللہ کے تابع ہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, اور سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ احکام الہی سے ہم بھاگتے کیوں. سوال یہ ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کے قانون ہم کو پسند نہیں آتا, کیوں ہم مسلمانوں کو داڑھی رکھنا پسند نہیں آتا, کیوں ہم مسلمانوں کو نماز پڑھنا پسند نہیں آتا, کیوں ہم مسلمانوں کو شریعت پہ چلنا پسند نہیں آتا, جبکہ ہم سب کے سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے. یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہوگی کہ ایک آدمی کو اس بات کا علم ہے کہ ہم سب کے سب مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, اور ایک آدمی کو علم نہیں ہے. تو جس کے پاس علم نہیں ہے اگر وہ نافرمانی کر رہا ہے تو بات تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن جب علم ہو گیا, جیسے مان لیجیے ہندوستان میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ یہ جرم کریں گے تو آپ کو اتنی سزا ملے گی, اور بالکل آپ کے سامنے داروغہ یا پولیس میں کھڑا ہے, تو کیا آپ یہ کام کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جرم کرنے کے بعد جانا کہاں ہے؟ جیل جانا ہے. آپ جانتے ہیں اس بات کو, تو ہم اور آپ کبھی یہ کام نہیں کریں گے, کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ جانا کہاں ہے, سزا کیا ہے, پنشمنٹ کیا ملے گی. لیکن جان بوجھ کر ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اپنے آپ کو آگ میں ڈال رہے ہیں, اپنے آپ کو جہنم کا مستحق ٹھہرا رہے ہیں. یہی اس کا مطلب ہوگا جب تک تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 84 میں بیان کر رہا ہے, کل اے نبی کہہ دیجئے کہ آمنا, ہم ایمان لائے, کس پر؟ باللہ, اللہ پر. وما انزل علینا, جو کچھ ہمارے اوپر نازل ہوئے. اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں, اور جو کچھ آپ کے اوپر میں نازل کیا آپ کو بھی ایمان لانا ہے. پیغمبر سے کہا جائے, متبعین اور صحابہ تو آپ کے اوپر ایمان لائیں گے, آپ کے اوپر جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے آپ بھی مانیے کہ سب حق ہیں, اللہ نے حق نازل کیا. قل آمنا باللہ وما انزل علینا, اے نبی اب کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائیں اور جو کچھ ہمارے اوپر نازل ہو اس پر ایمان لائیں. وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط, اور جو کچھ بھی حضرت ابراہیم پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی ذریت اور اولاد پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ, اور جو کچھ بھی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. والنبیون من ربہم, اور جو کچھ بھی جو بھی نبی تھے اپنے رب کی جانب سے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں, یعنی تمام پیغمبروں پر ہم ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم, ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے, ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم ہے ہی مسلمان, ہم تو مسلمان ہی ہیں. یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے کہ لا نفرق بین احد منہم, یہ اقرار اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کروایا کہ ہم کسی بھی نبی کے درمیان فرق نہیں کروائے. حقیقت ہے کہ آپ امام الانبیاء ہے, سید الانبیاء ہے, رحمۃ للعالمین ہے, آپ امام نبی کے سردار ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن ایک مومن کبھی بھی نبیوں میں فرق نہیں کرے گا.
नहीं होगा। जब फर्क करेगा तो इख्तिलाफ हो जाएगा ना, कि कल मान लीजिए हम लोग जन्नत में चले गए, अल्लाह सबको जन्नत में दाखिल करे, तो हम कहेंगे अरे तुम मूसा के मुताबिक हम नबी, हम मोहम्मद के मुताबिक, ये गुरु तकब्बुर आ गया। तो इब्राहिम को मती है, ठीक है, हम अल्लाह के रसूल को मती, ठीक है, ये फक्रिया है, फक्र की बात है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, लेकिन हम फर्क नहीं कर सकते किसी भी नबी पर, क्योंकि तमाम के तमाम नबी दावत तौहीद लेकर दुनिया के अंदर आए। अब अल्लाह ने उसमें किसी एक को इजाज़त दे दिया कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप इमामुल अंबिया हैं, तो हम फर्क नहीं करते, सब अल्लाह के पैगंबर हैं, सब अल्लाह के रसूल हैं, सब दावत दीन लेकर दुनिया के अंदर आए थे और सबों ने अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ निभाया और पूरा किया। उसके बाद अल्लाह ने कहा आयत नंबर 85, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना, अगर कोई इस्लाम के अलावा दूसरा दिन तलाश करता है, गैरल इस्लाम नहीं कहते हैं, जैसे मुस्लिम गैर मुस्लिम होते ना, गैर मुस्लिम भाई, इसी तरह गैर मुस्लिम किसे कहते हैं, जो मुसलमान नहीं, गैर इस्लाम तो इस्लाम के अलावा है। अल्लाह ने कहा मैं यब्तगी गैरल इस्लामी दीना, जो कोई भी इस्लाम के अलावा दूसरा दिन तलाश करे, अपना युग बला मिनहु, उससे हरगिज़ 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 कबूल नहीं किया जाएगा। यानी दीन इस्लाम के मानने वाले हैं और उस पर चलने वाले हैं तो हम जन्नत में जाने की उम्मीद रख सकते हैं। इस्लाम के अलावा दुनिया में जितनी भी अदियान है, दीगर मज़ाहिब है, चाहे जितना भी अच्छा हमारे जहन को लगे, हमारी नज़र को लगे, हमारी समझ को लगे, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो दीन काबिल कबूल नहीं है। इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक कोई दीन अगर काबिल कबूल है तो क्या है, इस्लाम। अल्लाह ने कहा कि जो कोई भी इस्लाम के अलावा दूसरा दिन तलाश करे, फला युक़बल मिन्हु, उसे कबूल नहीं किया जाएगा, हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। वह फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में घाटा उठाने वालों में से होगा। ये भी अल्लाह ने कह दिया कि तुमको दीन की दावत दी जा रही है, तुमको समझ में नहीं आ रहा, ये मत समझना कि चलो कोई ना कोई दिन को तो हम मान ही रहे हैं, इबादत तो कर ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, पहले तो कबूल नहीं होगा वो दिन। और याद रखना कि आखिरत में तुम घाटा उठाने वालों में से हो। अब आखिरत में घाटा मतलब क्या होगा, मुनाफा का मतलब होगा मेहनत में चले जाएंगे आखिरत में, और घाटा का मतलब होगा कि हम जहन्नम में चले जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 86 में कहा, कैफा यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम व शहीदू अन्न रसूला हक़ व जाअहुमुल बय्यिनात, कैसे अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को हिदायत देगा जो अपने ईमान लाने के बाद और इस बात की गवाही दे कि अंदर रसूल हक़, उनके रसूल हक़ हैं, बरहक हैं, व जाअहुमुल बय्यिनात, और उसके पास वाज़े और रोशन दलीलें भी आ गई। अल्लाह कैसे ऐसी कौम को हिदायत देगा जो इन चीज़ों की गवाही देने के बाद और उनके पास वाज़े दलीलें आने के बाद भी कुफ्र करे, यानी काफिर हो जाए। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला ऐसी कौम को कैसे हिदायत देगा जो अपने ईमान लाने के बाद काफिर हो जाए, जो रसूल की गवाही देने के बाद काफिर हो जाए, और उसी तरीके से वाज़े दलीलें आ जाने के बाद भी वो काफिर हो जाए। तो अल्लाह ऐसे लोगों को कैसे हिदायत देगा, यह आयत करीमा आप समझ लें कितना अहम है। हिदायत समझ रहे ना, हिदायत कौन देता है, अल्लाह देता है। अगर आज हमारा मुसलमान है कि अल्लाह ही की देन है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह ने हिदायत दी। अल्लाह कहना चाहता है कि ईमान लाने के बाद कोई आदमी मुसलमान हो गया, आजकल देखेंगे बहुत से मुसलमानों को इस्लाम के अंदर नुक्स नजर आता है, ये बड़ी हैरत की बात है, जबकि दीन इस्लाम एक पाकीज़ा दीन है। कोई दुनिया आज से नहीं है, अल्लाह के नबी के ज़माने से इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठी। जैसे आजकल है ना वेस्टर्न कल्चर है, मगरबी तहजीब, कि इस्लाम औरतों को बंधक बना के रखता है, घर की चार दीवारियों में रखता है, उनको आज़ादी नहीं देता है, खुद सब कुछ मर्द करे लेकिन औरत कुछ ना करे। इस तरह की बात सुनने में आती है नहीं आती है? बहुत सारे हमारे भाई जो गैर मुस्लिम हैं तो सवाल करते हैं कि इतना आपको कैद भी क्यों रखते हैं, उसको भी जिंदगी जीने का हक है, उसको भी बाहर निकलने का हक है। इस तरह की लायानी बातें आपके सामने इसलिए पेश की जाती है ताकि एक नुक्स के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाए। उसी तरीके से आतंकवाद की जब बात आती है, क्या जरूरत है आप लोगों को बम बांधकर दूसरों को उड़ा देना, मासूमों की जान ले लेना, ये आतंकवाद का पाठ वो लोग पढ़ाते थे जो आज फलस्तीन के मसले में खामोश है। आज तो हमें और आपको ऐसे दोस्तों को बोलना चाहिए, याद है आपने एक बार तो हमसे कहा था ये आतंकवाद है, ये टेरर है, आज आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं इस बारे में? अल्लाह ने तो मौका दिया। आज इस सारे जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं जो मुसलमानों के ऊपर या इस्लाम को तनकीद के नज़र से देखते थे और हमें पाठ पढ़ाते थे कि अमन व शांति कायम करो, जबकि मालूम होना चाहिए कि दीन इस्लाम के आने से पहले दुनिया के अंदर जो फितना फसाद और उतार चढ़ाव और इसी तरीके से भूचाल था वो इस्लाम के आने के बाद नहीं हुआ। इस्लाम से पहले क्या हुआ, इस्लाम में आया, इस्लाम आया इन चीज़ों को खत्म किया गया। जैसे खुद हम नबी की जिंदगी में देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले औरतों को क्या किया, जिंदा दरगोर कर दी। बच्चियों को, अगर किसी की बच्ची पैदा होती
तो क्या किया जाता था, जिंदा गाड़ दिया जाता जमीन के अंदर, मरने के बाद गाड़ते हैं मुर्दे को तो जिंदा गाड़ देते थे। ये किसने पाठ पढ़ाया कि बच्चियां जो है रहमत होती है, ये इस्लाम ने पाठ पढ़ाया। इसी तरीके से जमाने जाहिलियत में अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता तो उसे मनहूस माना जाता था, काली परछाई माना जाता था। नहीं कहते थे कि आके मेरे बेटे को खा गई, बहन कहती थी मेरे भाई को खा गई। आजकल भी चीजें हैं, ऐसी बात नहीं। ये किसने पाठ पढ़ाया कि नहीं, जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाए वो मनहूस नहीं होती, वो काली परछाई नहीं होती। और इसका सबूत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करके प्रैक्टिकल दिया। आपका पहला निकाह हज़रत खदीजा से हुआ, जो कि एक बेवा थी, मुतल्लका थी, दो निकाह उनका हो चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे शौहर थे, लेकिन वो अल्लाह के रसूल की पहली बीवी है ना। ये पाठ किसने पढ़ाया? तो ये जो बातें जो होती है दुनिया के अंदर, हमें इन चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। अल्लाह ये कह रहा है कि अल्लाह उस कौम को कैसे हिदायत देगा जो ईमान भी ले आए, वाज़े निशानियाँ, जैसे हमने आसमान को देखा, कई बार मिसालें दी जा चुकी है कि बगैर खंबे के आसमान खड़ा है, एक आदमी देख रहा है हाँ बगैर खंबे के खड़ा है, और सूरज जो है बिल्कुल अपने टाइमिंग से निकल रहा है, सुबह में शाम को डूब रहा है, दिन और रात अपने टाइम पर हो रहे जैसे हम लोग पैदा हुए, कोई स्विच नहीं, कोई बोर्ड नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। आखिर इन चीज़ों को कर कौन रहा है? ये सवाल होना चाहिए ना। अब इसके बावजूद कोई अगर ईमान नहीं लाता, अल्लाह कह रहा है इस कौम को मैं कैसे हिदायत दूं जो अपने कुफ्र, ईमान लाने के बाद कुफ्र करे। नबी के बारे में भी कह रहा है कि बहक है ना, वह अन्ना रसूल हक, कह रहा है कि हाँ रसूल हक है, इसके बाद भी वो हिदायत नहीं पा रहा है, तो अल्लाह कह रहा है तब उसको कैसे हिदायत दे। यानी कहने का मकसद ये है कि अल्लाह हमारी जिंदगी में जो भी हालात पैदा करा, चाहे अच्छा या बुरा, उससे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। हम इबरत नहीं हासिल करते हैं, इस वजह से हमारे ईमान में गिरावट आ जाती है। हम इबरत हासिल करेंगे तो अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत कर देगा इंशाअल्लाह। आगे अल्लाह ने कहा वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ने इसको जालिम कौम कहा, ऐसे लोगों अल्लाह ताला जालिम कौम को कभी भी हिदायत नहीं देता। फिर अल्लाह ने आयत नंबर 87 में कहा उलाइका जज़ाओहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन। उलाइका, यही वो लोग हैं, जज़ाओहुम, जिनका बदला, जिनकी सजा ये है कि अन्ना अलैहिम लानतुल्लाह, उनके ऊपर अल्लाह की लानत होगी, वल मलाइकति, और फरिश्तों की लानत होगी, वन नासी अजमईन, और तमाम लोगों की लानत होगी। ये लोग मलऊन हैं, उन लोग जो अल्लाह की वाज़ेह निशानी देखने के बाद ईमान नहीं लाते, ये लोग मलऊन हैं। मैंने कहा ना कि जो इस्लाम के ऊपर मीडिया उठाते, तनकीद करते, आ चुका है, तो ऐसे लोगों की हमारी जिम्मेदारी है ढूंढ कर निकालें और कहे कि आपने पाठ जो पढ़ाया था आज वो पाठ आपका जिंदा है या वो सिर्फ मेरे लिए था या आपके लिए भी। तो ऐसे लोग जल्दी ईमान लाएंगे कि हाँ उस वक्त हमने उंगली उठा दिया कि हाँ भाई इस्लाम टेररिस्ट एक तंजीम है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये तो हम लोग भी कर रहे हैं, बेगुनाह मासूम बच्चों को मार रहे हैं, क्या ये आतंकवाद नहीं है कि नहीं? ये जवाब इसलिए दिया जाना चाहिए ताकि उनको एहसास, उनको नीचे दिखाना नहीं है, उनको एहसास दिलाना है मतलब इससे चीज़ों की तालीम नहीं था बल्कि तुम्हारा मजहब देता है। नहीं तो अपने उलमा से पूछो, आप देखिए ना कि इतने सारे बच्चे फलस्तीन के अंदर, मासूम बच्चे बच्चियाँ, हमारी माँ बहनें मारी गई, क्या किसी भी अहले इल्म ने कहा कि तुम भी उनके बच्चों को मारो जो जहाँ पर है? हम लोगों ने कहा कभी? एक आलिम ने कहा, क्योंकि सब्र ये तालीम है इस्लाम की कि आप जो काम कर रहे हैं, मासूमों को मार रहे हैं, इस्लाम ने कभी तालीम के बदले में तुम भी उनके मासूमों को मार दो। किसी भी उलमा ने आज तक नहीं कहा होगा। ये उलमा की बड़ी शान है, गुस्सा उनको भी है, ऐसी बात नहीं है। अखबारात में, टेलीविजनों में देख रहे हैं कि हाँ भाई हमारी छोटे छोटे बच्ची, नन्ही बच्ची हमारे पास खेल रही है, बम गिरी मर गई। तो क्या हम लोगों ने कहा अपने खुद बात के अंदर कि आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ की इस तरह की बच्चियों को देख के मार दो? कभी भी इस्लाम की तालीम नहीं दी, गलत। ये तो कोई इस तरह पोस्ट भी नहीं हो पा रहा। आपको एक और मैं मिसाल दे दूँ, लेकिन इंसानियत का दर्स जो है ये इस्लाम ने दिया है। पाकिस्तान के अंदर बकरीद के मौके पर किसी का पालतू ऊँट था, वो ऊँट किसी के यहाँ चला गया खेत में, उसके खेत को खाकर नुकसान पहुंचाया। वो भी मुसलमान था जिसके खेत में गया, उसने गुस्से में क्या किया, उस ऊँट का एक पाँव काट दिया। उसने गुस्से में उस बेजुबान ऊँट का एक पाँव काट दिया। 4 पाँव होते हैं, एक पाँव काट दिया। पूरे मुसलमानों की सहमति उस ऊँट के साथ, उस मुसलमान के साथ नहीं। ये है इस्लाम की खूबसूरती। ये नहीं कि तुम मुसलमान हो काट दो, जानवर है काट दी तो क्या होगा, नहीं। इस्लाम का ये हुक्म है कि बेजुबान के साथ भी हम नारवा सलूक नहीं कर सकते, तो हम तो इंसान हैं। आप सोचें, ये इस्लामी तालीमात है कि एक बेजुबान जानवर जो है, हदीस पढ़े ना कि एक औरत ने बिल्ली को पानी में पिलाया, मर के जहन्नम में चली गई। वो औरत
जहन्नम में चली गई सिर्फ बिल्ली को खाना ना खिलाने की वजह से, वो भूखी बिल्ली थी। अब क्या समझते हैं इस्लाम की तालीम को? उस आदमी ने, मुसलमान था वो आदमी, उसने ऊँट के एक पाँव को काट दिया, उसको तो जेल हो गया, पुलिस ने पकड़ा, और पूरे वहां की जो आवाम उस ऊँट के साथ है, ना कि उस दरिंदे के साथ। ये हमारी और आपकी जिस दीन को मानते इस्लाम, उसकी तालीम। ना कोई पोस्ट किया गया, ना कोई अफवाह फैलाई गई, ना कभी बदला लेने की बात की गई। आज सब्र के साथ हम लोग बैठे हुए हैं, यही अच्छा सच्चा इस्लाम है। बाकी जो और गला रहे हैं कि हमारी बच्चियों को मारा जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, वो इस्लाम को मानने वाले नहीं है, उनके पास इस्लाम की तालीम ही नहीं। वो तो इस तरह के जो तो नसारा के एजेंट है, जो चाहते हैं मुसलमानों को गला कर और उनको कुछ गलत कदम उनसे उठाया जाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह के फितने से महफूज रखे, आमीन। उस पर अल्लाह ने कहा कि इन लोगों की सजा ये है कि उन पर अल्लाह की लानत होगी, फरिश्तों की लानत होगी, तमाम लोगों की लानत होगी। उसके बाद आयत नंबर 88 में अल्लाह ने कहा खालिदीन फीहा ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, हमेशा हमेशा क्या है, उस लानत में रहेंगे, जहन्नम में रहेंगे, और उनसे अजाब को हल्का नहीं किया जाएगा, वला हुम युनज़रुन, ना उनको मोहलत दी जाएगी। इतना बड़ा अजाब है कि हम अल्लाह की निशानियां देखने के बावजूद, अल्लाह के रसूल की शख्सियत को पहचानने के बावजूद ईमान नहीं ला रहे हैं, तो ये सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर कर रखा है। इल्लल लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिका, सिवाय उनके जो इसके बाद तौबा करें, उन्हीं में से जो अल्लाह की निशानी देखकर ईमान नहीं लाए लेकिन फिर बाद में तौबा करके मुसलमान हो जाए, तो अल्लाह कह रहा है इल्लल लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिका, जो उसके बाद तौबा कर लें, वो असलहू, और अपनी इस्लाह कर ले, तो फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला गफूर, बख्शने वाला, रहीम, मेहरबान है। असल में आयत करीमा उस शख्स के बारे में नाज़िल हुई, एक शख्स मुसलमान हुआ, और मुसलमान होने के बाद फिर काफिर होने के बाद उसको लगा कि नहीं, मुसलमान ही सही, मुसलमान ही सही, वापस लौट गया। तो अल्लाह ने कहा कि अगर कोई वापस लौट रहा है, उसको ईमान की फिक्र है, तो उसके सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। ये लदीना ताबू, मगर उसके सिवा इसके जो तौबा करे, तौबा किया सच्ची तौबा, और दोबारा फिर मुसलमान, एक बार मुसलमान हुआ लेकिन निकल गया फिर दीन से, फिर बाद में वो तौबा किया और अपनी इस्लाह कर लिया, मुसलमान हो गया, तो अल्लाह कह रहा है कि ऐसा अल्लाह, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। लेकिन एक शख्स के और बारे में अल्लाह ने बयान किया, वो आयत नंबर 90 में, इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक जो कुफ्र करे, बाद ईमान, अपने ईमान के बाद, जो अपने ईमान के बाद कुफ्र करे, ईमान लाया फिर कुफ्र में चला गया, सुम्मज़दादु कुफ्रन, फिर अपने कुफ्र में बढ़ गया, यानी कट्टरपंथी उसके अंदर आ गई मुसलमानों के खिलाफ, लन तुक़बल तौबतहुम, तो अल्लाह कह रहा है कि उसकी तौबा हरगिज़ हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी, व उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और यही लोग गुमराह हैं। यहाँ इसको समझने अच्छी तरीके से, ऊपर में कहा इल्लल लज़ीना ताबू असलमू, इल्लल लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिका व असलम। एक आदमी क्या है, मुसलमान हुआ, कुफ्र की हालत में था, फिर मुसलमान से निकल कर कुफ्र की हालत में चला गया, फिर उसको लगा कि नहीं ये दिन सही है, और वो मुसलमान बन गया। अल्लाह क्या है, अल्लाह गफूर रहीम। दूसरी आयत में जो अल्लाह ने कहा कि उसकी तौबा कबूल के लिए कौन लोगों की है, एक आदमी गैर मुस्लिम था, मुसलमान हो गया, फिर चला गया गैर मुस्लिम, और लाइफ टाइम गैर मुस्लिम रह, लेकिन जब मौत का वक्त आया तो उसको एहसास हो गया कि नहीं ये दिन तो सही है। कब सोच रहा ईमान लाने की, मौत के वक्त, तो अल्लाह कहा कि अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं। अब तक वो ठीक था, मरने लगा तो समझ में आ गया कि हम जहन्नम में जाएंगे, अब वक्त करीब है मेरी मौत का, अब कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि सुम्मज़दादु कुफ्रन, कुफ्र बढ़ते चला गया, मतलब काफिर ही रहा, वो लौटा ही नहीं। कब लौटना चाह रहा है, मौत के वक्त, मर्जुल मौत में, आप मरने वाला, रूह निकलने वाले, कह रहा है कि मुसलमान, अल्लाह कह रहा है तुक़बिल तौबतहुम, ऐसे लोगों की तौबा हरगिज़ हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी। आज का दर्स मुकम्मल हो गया, इसके मुतालिक कोई सवाल हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। सच्ची तौबा क्या है, सवाल ये कि सच्ची तौबा क्या है। हाँ, ये हकीकत है कि तौबा के बारे में हम जानते हैं, तौबा किसे कहते हैं, ना जानने की वजह क्या है कि बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई क्या करते हैं कि गुनाह करते हैं, बड़े बड़े गुनाह, फिर तौबा करते हैं, नमाज हो गया, अल्लाह हमको माफ कर दे, हमको माफ कर दे, दोबारा नहीं होगा, फिर बड़े गुनाह में चले जाते हैं, फिर तौबा कर लेते हैं। तो सही बात है कि तौबा का माना क्या है, तौबा हकीकत में कहते हैं कि सच्ची तौबा क्या है। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलैहि तौबतन नसूहा, ईमान वालों से कहा ईमान वालों तुम तूबू इलैहि तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा करो अल्लाह की तरफ, अल्लाह से सच्ची तौबा करो। देखिए तौबा कहते हैं लौटने को, ताबा या तुबू का माना होता है अरबी के अंदर लौटना, बैक होना जिसको कहते हैं।
बैक मतलब तौबा में बैक होने का मतलब क्या हुआ कि हम जिस गुनाह के रास्ते पर चल रहे हैं उससे हम पलट जाए, बैक आ जाए कहाँ, नेकी के रास्ते पर। ये गुनाह है कि आदमी गुनाह करते करते आगे चला गया, आगे खाई, ये खाई क्या है, ये तौबा है। वो जानता है कि अब और आगे बढ़ेंगे तो खाई में गिर जाएंगे, यानी हम फिनिश हो जाएंगे। तो वहां से जो पलटे उसको तौबा कहेंगे। पलटना मतलब बात समझ रहे, नहीं कि वो रास्ते पलट के गुनाह ही करना नहीं, मिसाल दी जा रही है। एक आदमी गुनाह के रास्ते में चल के चला जा रहा है, अब उसको एहसास हुआ कि नहीं नहीं ये गलत रास्ता है, वहीं से वो बैक हुआ, पलटा नेकी की तरफ, उसको कहते हैं तौबा। तौबा, सच्ची तौबा जिंदगी में एक ही बार होती है, बार बार नहीं होता। बार बार हो तो कोई भी गुनाह करेगा फिर तौबा करेगा, गुनाह करेगा तौबा करेगा, गुनाह करेगा तौबा करेगा। एक बार आदमी तो वैसे एक कोई भाई है हमारा मुसलमान है, तो शिर्क की हालत में है, तो पता नहीं कि ये बहुत अजीम गुनाह है, ठीक है। बाद में अल्लाह उसको हिदायत दे दिया, वो पलट गया कि नहीं तो शिर्क है, तो बहुत बड़ा गुनाह, अल्लाह ताला माफ भी नहीं करेगा। अल्लाह ताला कुरान कहता है ऐसे लोगों को बख्शेगा नहीं जिस तरह शिर्क करते हैं। तो पलट गया, लाइफ टाइम नहीं पलटा, शिर्क की तरफ नहीं गया, तो वो सच्ची तौबा है। नहीं पलटा फिर गया, फिर पलटा फिर गया, उसको सच्ची तौबा नहीं कहते, वो तो मजाक हो गया। तो किसी भी इंसान की जिंदगी में तौबा एक ही मरतबा होता है। तौबा असल में एहसास को कहते हैं, उसका ज़मीर उसको एहसास दिलाता है कि आप गलत कर रहे हैं, इस चीज़ को छोड़िए फौरन। और वो फौरन नहीं छोड़ेंगे, अचानक मौत आ गई तो मौत तो मोहलत ही देगी किसी इंसान को, अभी जिंदगी में है तो मोहलत है, इसलिए डेट ना रखे तुम, थोड़ा सा और ही काम करके फिर कर लेंगे, क्योंकि अगर मौत आ गई तो फिर मौका नहीं। आपने बताया कि औरत जो है बिल्ली को बांध कर रखी है, अल्लाह ताला ने, तो एक ये भी है ना कि तवाइफ का जो वाक़या है, जो उसने जूते से पानी पिलाया था वरना तो हाँ उसके लिए पानी पिलाया कुएं से, तो उसमें अल्लाह ने उसकी गुनाह को बख्श दिया। जानवरों के उसके सुलूक के ताल्लुक से जो बातें बताई गई, सवाल ये है कि जैसे एक औरत ने बिल्ली को बांध के रखा, खाना पीने की बिल्ली मर गई, तो अल्लाह ने उसकी वजह से उसको जहन्नम में डाल दिया। और एक काफिला गुजर रहा था और एक कुत्ता प्यासा था, तो काफिला क्या किया, कुएं में उतर के एक आदमी, और सही बुखारी के बाद अपने जूते में पानी जाता था और कुत्ते को पिलाता था। अल्लाह को अंदाज बहुत पसंद आया, कुत्ता सब प्यासा हुआ है और पानी कहीं है नहीं, कुआं है नहीं, कुत्ता कुएं में जाएगा तो डूब जाएगा गिर कर। तो उस आदमी ने क्या किया, उस कुत्ते को पानी पिलाने के लिए कुएं में उतरा, जूते में ले जाकर उसको पानी पिलाया, तो अल्लाह को ये अंदाज बहुत पसंद आया, अल्लाह ने उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। ये इस बात की तरफ इशारा है कि इस्लाम की तालीमात में से ये भी एक तालीम है कि हम जानवरों के साथ हुस्न सलूक करें, जानवरों के साथ। इसी वजह से कुर्बानी के मौके पर अल्लाह ताला ने ये कहा कि जब जानवर को ज़बह करो तो कुछ आदाब बदला है, उसमें से एक अदब ये है कि एक जानवर के सामने दूसरा जानवर ज़बह ना करो। तो एक साहबी ने क्या किया कि एक ही मकामात पर कई जानवरों को ज़बह किया, तो अल्लाह रसूल ने कहा क्या तुम उसको दो मौतें देना चाहते हो, सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक मौत तो ज़बह होने के बाद उसको हो दो, वो जानवर की, एक मौत तुम उसको दे रहे हो, तो एक आदमी एक जानवर ज़बह हो रहा है और देख कर डरा हुआ है वो जानवर कि मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है, तो क्या तुम दो मौतें देना चाहते हो। इसी तरीके से आदाब में थोड़ी उसको तेज कर ले ताकि जानवर को ऐसा भी ना हो कब मेरी रगे कड़े। अदान हो रही है, अदान के बाद इंशाल्लाह ताला दोबारा सवाल जो आपने पहले शुरू किया है। सवाल ये है कि उम्मती के बारे में, जैसे हर पैगंबर की उम्मत होते थे उनके मानने वाले, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हम लोग हैं, सहाबा की सिलसिला चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला क़यामत की सुबह तक उन्हीं की उम्मती होंगे। तो उम्मतियों में भी क्या कोई मतलब कैटेगरी है बेहतर, तो ये तो बनी इसराइल के बारे में मैंने बता ही चुका कि हमसे पहले बनी इसराइल के जिनके बारे में मैंने कहा हज़रत आलमीन, हमने तुमको तमाम जहान वालों पर फजीलत दे रखी है, लेकिन इनकी सरकशी और इनकी मासियत का इर्तिकाब करने की वजह से अल्लाह ने ये मकाम अब हमें और आपको दे दिया। और अल्लाह ने कहा तुम खैरा उम्मती, तुम एक बेहतरीन उम्मत, बेहतर उम्मत का लक़ब अल्लाह ने कुरान में हमारे ताल्लुक से कहा, यानी उम्मत मुहम्मदिया के ताल्लुक से। तो हाँ ऐसा है कि सबसे बेहतरीन उम्मत अंबिया इकराम है, उनमें हम ही लोग हैं, लेकिन इसमें बाद में कैटेगरी भी बयान किया गया कि उसके बाद इब्राहिम सलाम की उम्मत, उसके बाद मूसा सलाम की उम्मत, उसके बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम, ऐसा कुछ नहीं।
सब उम्मतों से बेहतर उम्मत हम है उम्मत मोहम्मदिया। तो हमारी ये शान जब है तो वैसी हमारी पहचान भी होनी चाहिए। ऐसा तो हदीस में उम्मत मोहम्मद से 70,000 लोग जो डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। इस बारे में एक फजीलती में है कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर सवाल जवाब की जन्नत में जाएंगे। मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर सवाल जवाब के, कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, मैदान महशर में कोई सवाल जवाब नहीं होगा, डायरेक्ट वो जन्नत में जाएंगे। तो कौन होंगे? जो लोग शिर्क से पाक होंगे, गुनाहों से पाक होंगे, उनके ऊपर किसी का जिम्मा कुछ नहीं होगा, किसी के हुकूक नहीं होंगे। ऐसे लोग जो जादू पर या इसी तरह की चीज़ों पर ईमान नहीं लाते, तो ऐसे लोग होंगे जो बगैर सवाल और जवाब के 70,000 होंगे जो जन्नत में चले जाएंगे। ये भी एक फजीलत है जो दीगर उम्मत को नहीं मिली है। हम भी में से 70, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी और हमारे अहल वयाल को भी उन 70,000 में शामिल करें। रमजान में इंतकाल होने से भी बगैर सवाल जवाब के जन्नत में जाते हैं। देखिए, इस बारे में जो सवाल है कि रमजान में कोई इंतकाल कर जाता है तो क्या वो भी बगैर सवाल जवाब के जन्नत में चल जाएगा? तो ऐसी एक हदीस है कि जो बंदा रमजान में इंतकाल करेगा जन्नत में जाएगा, तो उसमें भी वो कैटेगरी शामिल करनी पड़ेगी, वो शराइ शामिल करने पड़ेंगे कि उसके ऊपर किसी का मतलब हक ना हो, तो किसी के हक को ना छीना हो, शिर्क वगैरह ना करता हो, सुन्नत पर चलने वाला हो, ईमान वाला हो, अकायद में मजबूत हो, अकायद में गड़बड़ी ना हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वरना रमजान में जो बहुत सारे मुसलमान इंतकाल कर रहे हैं, लेकिन मालूम चला कि किसी के हक को लेकर बैठे हुए हैं, किसी के बकाया है, इनके साथ पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हदीस सही है कि रमजान में जो इबादत जो मुसलमान इंतकाल करता जन्नत में जाएगा, तो इतना आसान नहीं है। शहीद के बारे में पढ़े ना कि शहीद जब इंतकाल कर जाता है तो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, लेकिन उसके ऊपर अगर कर्ज होगा तो अल्लाह उसके मामला को अटका देगा। शहीद सोच ले कि सबसे बेहतरीन मौत शहादत की मौत है, लेकिन शहीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन रोक कर रखेगा जब तक उसके अहल अयाल दुनिया में उसके कर्ज को अदा नहीं कर देंगे, तब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा। देखिए, जब तकरीर के दौरान जो बात कही कि हज़रत उमर फारूक खान काबा का जो वाक़या था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में थे और तौरात पढ़ रहे थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए। तो सवाल ये कि क्या हम लोग भी अब तौरात को नहीं पढ़ सकते या स्टडी या मुताला करने के लिए दीगर मज़ाहिब का पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? तो देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि उससे बेहतर किताब कुरान हमारे पास मौजूद है, तो हमें जाना ही नहीं चाहिए उस चीज़ की तरफ, क्योंकि हर आदमी का ईमान एक समान नहीं होता है। किसी का कमज़ोर होता है, किसी का बीच का होता है, किसी का बहुत मजबूत होता है। तो मजबूत ईमान वाले तो डगमगाएंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला, लेकिन जो मीडियम और कमज़ोर है तो हो सकता है कि उसमें आ जाए। एक चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं, तो आप तन्हाई में पढ़ें, किसी वहाँ के उलमा से ना पूछेंगे तो समझाइए कि इसका मतलब क्या हुआ, वरना वो आपको गुमराह कर देंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि तौरात या दीगर चीज़ों की किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, इतनी बेहतरीन किताब कुरान और हदीस हमारे सामने मौजूद है। लेकिन तीसरा वो शख्स जो डिबेट करता हो ऐसे लोगों जैसे जाकिर नाइक की शख्सियत है, जिनको जवाब देना पड़ता है, और बेहतर जवाब ये होता है कि आदमी को उसके किरदार से जवाब दे दिया जाए, तो आदमी ज़्यादा समझता है। तो क्या होता है कि आमतौर पर हम किसी के ऊपर फतवा फ़ौरन लगा देते हैं, फतवा लगाने में कोई टाइम लगता है, हम किसी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं कि भाई आप ऐसे वैसे हैं, लेकिन जब आदमी कहते हैं कि अच्छा आपके साथ भी एक मतलब मामला हुआ था, तो वो आदमी लाजवाब होता है। इसी तरीके से आपकी किताब नहीं लिखा हुआ, हमारी किताब को थोड़ी है। आप जैसे एक डिबेट में बहुत अच्छा लगा था कि जाकिर नाइक एक सवाल किया गया था कि मुसलमान चाचा शादियाँ करते हैं और ये करते हैं, तो उन्होंने उनके किसी देवता का जिक्र किया था, कृष्ण, हाँ, कृष्ण भगवान के बारे में कहा, उन्होंने कितनी शादियाँ की थी। तो उस आदमी को मालूम ही नहीं था, बेचारा वो जानता नहीं था, इसीलिए मुसलमान के बारे में पूछने लगा। ऐसे ही तो अक्सर होता है कि हमें अपने बारे में बहुत कम मालूम, दूसरे के बारे में मालूम। उन्होंने उसका जवाब बेहतरीन जवाब दिया था कि आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप जिस देवता को पूजते हैं, आप ये बताइए कि वो कितनी शादियाँ की, शायद 19 या 20,000 16,000 शादियाँ की। सोचिए 16,000। वो आदमी खामोश हो गया, उसके बाद आगे जवाब ही नहीं मिला, वो चुप ही हो गया, माइक से हट गया। समझा रही है? तो अगर इस तरह के कोई शख्स है जो डिबेट वगैरह करते हैं और उनका मकसद आलम इस्लाम को दीन की तरफ बुलाना है, तो स्टडी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि अपने ईमान को बचाना बहुत जरूरी है। तौबा के तारीफ से आपने बताया कि तौबा की बात है, इंसान दुनिया में रहने की वजह से इंसान को बहुत सारी छोटी बड़ी गलतियां करता है।
कैटेगरी की बात नहीं कर रहा तो बोला जाता है इंसान है इमीडिएटली हो ही जाता है हम तौबा का दरवाजा हमेशा खुला देखिए है। इसमें जो बात आपने बात बोल रहे हैं कि जैसे तौबा जिंदगी में एक ही बार करना है, लेकिन इंसान है उसे सब कते लिसानी का है, फ्रीबोक्टन का है, जो भी है कर दिया, वो चीज़ें बोल दिया कर दिया, तो ऐसे में क्या करना है उसमें देखिए नीयत अल्लाह जानता है। अगर आप गलती से कर देते हैं कि अल्लाह नियत इसीलिए कहा कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारोमदार नियत है। जाहिर सी बात है एक चीज़ जब तौबा कर रहे हैं हम, तो हमें उसमें सुधार के लिए अपने आप जहन को हाजिर नाजिर रखना होगा। अगर फितरत इंसानी को हम लाते हैं कि इंसानी फितरत है कभी भूल चूक हो जाती है, तो रुपया उम्मत के खता बनी सियान अल्लाह के रसूल ने कहा मेरी उम्मत से गलती या भूल चूक को उठा लिया थे, माफ कर दो, उस पर पकड़ नहीं। अब आप जानबूझकर कर रहे गलती से कर, आप तो जुबान से करे गलती से, लेकिन अल्लाह नियत को जानता है। हमारे सामने बोल के बच सकते हैं, आपके सामने बोल के हम बच सकते हैं कि नहीं हम गलती से ऐसा हो गया, हो सकता है जानबूझ के कर रहे हो, लेकिन अल्लाह जानता है इस चीज को। तो जहाँ तक तौबा का ताल्लुक है, हम गलती जानबूझ कर अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है कि जानबूझ के कर अल्लाह माफ नहीं करे, और अल्लाह जानता है कि नहीं गलती से हो गया तो अल्लाह माफ कर देगा, क्योंकि उसने सच्ची तौबा की है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा, नहीं करना चाह रहा, हो गया गलती से नहीं कर दिया, वो अलग बात है। सर नियत के बारे में इमाम नमाज में काफ़ी दफ़ा हम लोग देखते हैं कि लोग जुबान से नियत रखते हैं और वजू नहीं रखते, उससे रिलेटेड एक सवाल। जुबान या उर्दू या जो भी नियत का जो मामला है, नियत के बारे में एक बात मैं बता चुका हूँ कि नियत में इरादा दिल कुलूब, नियत कहते हैं दिल के इरादे का, और जुबान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नियत नहीं की, ना कोई साबित है। देखिए नमाज जो पूरी नमाज है वो अरबी में, दुआ के बारे में नहीं बताया था आप लोगों को, सजदे में दुआ करनी चाहिए, लेकिन अरबी में नहीं, उर्दू में नहीं कर सकते, सिर्फ अरबी में, क्योंकि पूरी नमाज अरबी में। एक ब्रिटिश शख्स है, अंग्रेज है या फ्रेंच है, वो भी नमाज पढ़ेगा तो पूरा अरबी में, वो उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में नहीं कर सकता, और इंग्लिश में नमाज नहीं पढ़ सकता। हम लोग उर्दू जानने वाले या हिंदी जानने वाले, हिंदी या उर्दू में नमाज हम लोग नहीं पढ़ सकते, ये बात याद रखें। तो फिर जब नियत जो है नमाज का हिस्सा है कि नहीं, मानते कि नहीं मानते? जो नियत हम करते हैं आजकल होता है जुबान के, हमारे भाई करते हैं, बहुत सारे भाई करते हैं कि मैं जोहर की नमाज या असर मगरिब की नमाज के लिए किबला मुँह मेरा किबले की तरफ वास्ते, जो भी चीज़ें हैं, ये उर्दू कहाँ से आ गया नमाज? अल्लाह के नबी के ज़माने में उर्दू नहीं था, वरना अल्लाह के नबी उर्दू जानते थे। अगर हम इसको अरबी भी हम साबित कर रहे हैं तो किसी भी रिवायत से साबित नहीं है। नियत तो दिल इरादे का नाम है, आप समझ रहे हैं? अभी आप यहाँ पे आए तो मुझसे बोले कि मैं जा रहा हूँ दर्स सुनने के लिए, और मैं राइट साइड बैठूंगा और फला के बगल में बैठूंगा, इस तरह कुछ नियत आपने किया जुबान से, आप करेंगे तो घर जाने बोलेंगे पागल हो, किसको बोल रहा है? तो ये सोचने वाली बात है कि नियत दिल के इरादे का नाम है। आप मस्जिद जा रहे नमाज पढ़ने, आपकी नियत है नमाज पढ़ने की, आप जाए वजू बनाए, सीधा किए वजू बनाए, नफिल और सुनन से फारिग हुए, ये सब अल्लाह जान रहा है, अल्लाह को नहीं बताने की जरूरत है। इसीलिए कुर्बानी के मसले में बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरा नाम हम लोग हिस्सा में है, मेरा नाम 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर पे क्या होगा? आप नाम ही मत दीजिए, जो अल्लाह आपको पैसा दिए कुर्बानी करेंगे उसको बताएंगे कि अल्लाह मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, कि कबूल कर ले, अल्लाह को नहीं मालूम। अल्लाह को नाम से मतलब नहीं, अल्लाह ने कहा ना ला यनाला लुहुमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह ताला को तुम्हारे कुर्बानी के जानवर का ना गोश्त पहुंचता है और ना खून पहुंचता है, वला की नाल तकवा मिनकुम, लेकिन अल्लाह ताला को तुम्हारे यहाँ कुर्बानी का तकवा पहुंचता है, तुम्हारा तकवा, कितना तुम अल्लाह से डरने वाले है ना। अल्लाह ने कहा ना साफ साफ, तो मुझे तुम्हारे जानवर के ना गोश्त पहुंचते हैं, कुर्बानी के जानवर के ना खून पहुंचते, तकवा पहुंचता है। तो गोश्त और खून तो नजर आता है, हम लोगों को सब कुछ देखते हैं, तकवा कौन देखता है? अल्लाह ताला देखता है। कितनी प्यारी चीज है, कितनी बेहतरीन आयत है कि हर कुर्बानी के जानवर का गोश्त नजर आता है, खून नजर आता है, लेकिन तकवा सिवाय अल्लाह के कोई नहीं देख सकता, अल्लाह वही देख रहा है। मतलब दुनिया को देखने के लिए गोश्त खून है, और हमारे लायक तकवा चाहिए। अभी कुर्बानी का टाइम चल रहा है, तो हम ये बात बोले तो बोलता है कि जब अल्लाह ताला को तो सब पता है, ठीक है, तो फिर ऐसा आदमी ऐसे मस्जिद में जब नमाज पढ़ने नहीं जाता तो फिर सामान है कि नहीं पड़ता है, अल्लाह को पता है जब ये साना पढ़ने वाला है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाला है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह है कि नहीं पढ़ता है। अब यही बात मुझसे बहुत बढ़िया है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। बहुत शुक्रिया उससे। ठीक है, दरस के इख्तिताम का ऐलान किया गया दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कोशिशों और मेहनतों को कबूल फरमा ले, आमीन। हमें एक समझ की तौफीक अता फरमा, और हमें हक बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.